Hello and Yes, yes. welcome. You are watching India.com with me, Malika Mezzabeen. And in conversation today, we have a very special guest with us. Let's welcome none other than Rahul Raj Singh. Hi, Rahul. Thank you so much for being a part of the show. Thank you, Mallika ji. Thank you so much for inviting me. मुझे ये बताइए कैसा चल रहा Yes, है सब yes. कुछ? How has Very been well. the life like? Life has been very good to me now. It Hmm. was very good to me then also, but it was very painful in between. It was very sort of emotionally जिसको breakdown बोलते हैं. I was facing that trauma in a very difficult time for me in between. Hmm. But now, the court time has also taken a lot of strain in my life. Going to court, I have never done all these things before in my life. Right. So it was very new for me to, go there and do things like that. And also for something which I have not done from far miles. I was not concerned with that death of my own girlfriend. Right. So Uh, you so it know, was very hmm, painful. And hmm. now it is good. Now it is good. The cases are also coming in. जल्दी जल्दी cases भी आ रहे हैं so that चीजें हो. I'm doing podcasts. I'm Hmm. starting some projects again. Hmm. So yeah. Wow, तो चल lovely. रहा है ये सब चीजें. Hmm. हम्म. I have to ask you this because we are talking about your projects and everything. You have been away from the screen for a while now, and all of your fans are really eager कि अब हम आपको कौन से नए projects में देखेंगे, क्या होगा आगे. So हाँ. I sort of understand that past few years have been really let's say it would have been a mental turmoil for you. बट कैसे कोप किया उन चीजों के साथ एंड हाउ हैज बीन दीज लास्ट पास्ट फ्यू इयर्स बीन फॉर यू. मल्लिका जी, मैं क्या वही तो बोल रहा हूँ कि अभी कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने प्लान किए हैं, जहाँ पे यू नो जैसे आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू बिग बॉस इवन बिफोर दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड. From the time it has started, because I was a model before, हाँ. and I have been title winner for a couple of titles in modeling. हम्म. And these are all real things, so it was a very good reality show which has come to the television. I always wanted to go there, but in between, when I was offered, I was not in my senses to even think about working anything, because मेरे लिए काम बोल के कुछ चीज था ही नहीं. हम्म. So so we are talking with them. So let's see if that happens. That would, because बिग I बॉस. am giving podcasts nowadays, interview. Big हम्म. Boss. ठीक है. हम्म. तो ये मतलब ऐसे है कि हम ही कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, सो दैट ऑल दीज थिंग्स पीपल शुड नो अबाउट मी फर्स्ट, यस. कि ट्रू. मैं कैसा हूँ, जैसा पोर्ट्रे किया गया है मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ. हम्म. एक कलाकार का हक होता है कि वो अपने फैंस को, उनको जो जानता है, उनको जो फॉलो करता है, हम्म. उन तक सच्चाई पहुंचाया जाए. हम्म. सो and that is a very good platform for you to go and show yourself that you are राइट. not like that. हम्म. राइट. राइट. You राइट. are not that villain. या You are not the एग्जैक्टली. guy. या एग्जैक्टली. Yeah, so I'm not a monster. So I'm a loving guy. उसको सब बहुत प्यार करते हैं. और मुझे जो रूप दिया गया, मेरे मुखौटे के आगे एक मुखौटा जो डाला गया है, वो एक बहुत ही गलत है. सो मैम, लेट्स सी. हाँ, अभी तक जान जान में जान है या नहीं है. यू नो बिल्कुल. बिल्कुल नहीं. आई एम श्योर क्वाइट जान में जान जरूर है. बिल्कुल है. एग्रीड टू दैट. आई थिंक ऑल योर फ्रेंड्स डेफिनेटली नो इट. नो सेकंड थॉट इन इट. Rahul, you have been, as much as I have seen you, I have followed you. For me and for other lot many people on online, you have been somebody who's very woke. You don't hesitate speaking your mind. You don't hesitate speaking your heart. uh April 2016 was a tough time. You were going through a lot, publicly as well as professionally. So, I just wanted to ask you, how did you cope up during that time? Because, public, especially the public scrutiny hoti hai, it gets a lot in terms of your mental health, in terms of your हम्म. emotional health. वो फेज कैसा था आपका? वो हम्म. आपने कैसे कोप अप किया? वो वक्त तो मतलब वक्त, मतलब ऐसा वक्त मतलब था कि कोप अप क्या करूं मैम, कोप अप नहीं कर पा रहा था मैं. हम्म. मुझे दो लोगों ने मतलब
कोप अप करवाया। आई वॉज नॉट, मैंने, अगर मैं बोलूं कि मैंने खुद से बहुत स्ट्रांग हूं और बहुत, मैं तो, मैडम, आई वाज लाइक अ डेड बॉडी वाज, living, but the only thing which I had was the truth. Right. But in able to come out of that trauma, those things in your life, in in the way you say vocal, Right. so it took a, a little time to Hmm. at least say that what I want to say, because वो एक ब्लॉक हो गया था मैम, मतलब लाइफ का ज्योग्राफी जो था, एक पूरा हिस्ट्री बन गया था। Hmm. जो मेरा फ्यूचर था वो मेरा पास्ट बन गया था। Hmm. Hmm. तो वो अचानक से, तो वो प्रेजेंट में था, रहा ही नहीं मैम, तो वो इट वाज बिटवीन द फ्यूचर एंड द पास्ट, Hmm. क्या होगा और क्यों हुआ। Hmm. That is true, because when somebody who's very dear to you passes away tragically, it is indeed a mental turmoil, definitely. And then what follows next is an add-on to it, right? Recently मैम you रिलेशनशिप से ज्यादा वो मेरी दोस्त थी। बिल्कुल। शी वाज शी इट वाज मोर ऑफ लूजिंग अ फ्रेंड, अ हम्म। वेरी डियर फ्रेंड। बहुत ही, एक रिलेशनशिप तो तब आता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये कोई, मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप, हम लोग पहले दोस्त थे। हम राइट। लोग, उसके बाद जब हम लोग एक दूसरे को बोले कि चलो ठीक है, मीडिया में आ गया कि दीज गाइज आर डेटिंग, और हम्म। हमने एक शो कर लिया पावर कपल। हाँ, हम्म। तो हम लोग कपल बन गए। पर वो सबसे पहले थे ना, मतलब हाँ, एक बिल्कुल। इतने क्लोज फ्रेंड को मतलब चूज खोना। करना बहुत, बिल्कुल। बहुत ज्यादा ट्रॉमा, दैट टू आई वाज द पर्सन आई हैव टेकन हर टू द हॉस्पिटल टू सेव हर लाइफ। यस। हम्म। हम्म। और मुझे ही, जस्ट टू गेट दैट 2 सेकंड फेम, वो हमारे हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री के कुछ बहुत विद्वान लोग, हम्म। उन लोगों को लगा कि हम तो इतने बड़े एक्टर हैं नहीं। और हम्म। जब इतना बड़ा मीडिया मेरे पास आ गया, इतना बड़ा तो शाहरुख के पास और सलमान भाई के पास जाता है, हम्म। हम्म। बिल्कुल। हमारे पास इतना मीडिया आ रहा है भाई। हम हम्म। जिंदगी में इतना मीडिया कभी देखा नहीं था उन लोगों ने। हम्म। अब वो बन गए शाहरुख, वो बन गए ऑन ऑफ स्क्रीन फरीदा जलाल, वो बन गए कोई मसीहा, कि हम्म। अब मैं जो हूँ बोलूंगी। हम्म। अब जब, तो बहुत ज्यादा गलत किया उन लोगों ने ना मैम। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। That's literally like tarnishing somebody's, in your opinion, would be tarnishing somebody's image in front of media, bringing them to public scrutiny. टार्निश था वो टार्निश था। वो क्या था, आप सोचो तो। मैं हम्म। तो उस समय हॉस्पिटल में था, मैं बाद में आके देखा इन लोगों ने क्या किया है, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस किए हैं इन लोगों ने। एक पूरा कॉन्फ्रेंस बना के, हम्म। तुम्हारी दोस्त मर गई है, तुम्हारी बेटी मर गई है, तू कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुझे आज भी याद है, आई वॉज लाइंग इन द बेड इन द हॉस्पिटल, हम्म। और मुझे सेडेटिव्स दे दिया गया था, बिकॉज मेरा बीपी वीपी शायद बहुत ज्यादा कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। तो मेरा दोनों आंख से आंसू टप 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 सूख जाता था। मैं आंख खोल के भी नींद नहीं आता था मुझे। मैं हाथ में, मेरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। और उन लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम्म। वो भी, उसके फादर मदर मुझसे फोन में बात करते थे हमेशा। हम्म। ये रिकॉर्डिंग में है, हम्म। हम्म। एविडेंस है मैडम। हम्म। वो लोग भी पार्टी बन गए इन लोगों के साथ और मिलके। तो अभी जब हकीकत, जब एविडेंस आया तो क्या था, जब उसके फादर गाली देते थे ना उसको, मुझे थोड़ी ना मालूम था, फोन रिकॉर्डिंग्स में निकले ना मैम। हम्म। हम्म। अब एक बाप, आप भी बेटी हो किसी के, फादर जब एक बेटी को गाली देंगे, वो भी गाली मतलब समझ रहे हो ना, गाली क्या होता है मैम? गाली होता है बिल्कुल। जो फीमेल पार्ट्स को वो गलत बना के उसको गाली दिया जाता है। हम्म। जब फादर के तरफ से वो गाली आता है तो बेटी को बुरा तो लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा, जब लगातार एक बाप, और वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, हम्म। वो ट्रिगर कर गया होगा। वो मेरे ना, अरे भाई, मान लिया कि तुम भी नहीं चाहते थे कि तुम गाली दे रहे हो तो वो सुसाइड कर ले, हम्म। तो मैं क्यों चाहूंगा वो सुसाइड कर ले? मैं तो चाहूंगा ना और जिंदा रहे, हम्म। हम बिल- लोग और आगे जाए, लाइफ में आगे जाए। अब
हम्म हम चाहेंगे, तो मेरा तो सेंस ही नहीं बनता था ना मैडम। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। You know, Rahul, whatever you're saying really matches to एक तरीके से सच दिखाना, सच बताना कि what has been the truth and the backstory. अभी you have been making headlines because of you boldly, spoke out about Kamya Punjabi and Pratyusha's fallout, specifically because of the alleged love triangle of Karan Patel and everything which happened so हाँ, far. you saw it in Google. Yeah. I also came to know it. Hmm. Yeah. Hmm. तो उनकी तो बातचीत ही नहीं होती थी, Hmm. मेरे 10-11 महीने में इनकी तो बातचीत ही नहीं होती थी मैडम। Kamya and Pratyusha. हाँ। Okay. So, वो कहाँ से आ गई? एजाज खान मेरे को फोन करके बोला था पावर कपल में जाना है, वो कहाँ से आ गया? hmm, एक्चुअली हुआ क्या मैडम, ये hmm, देखिए, फायदा हुआ सिर्फ इनके पेरेंट्स को। जितने लोन्स थे प्रत्युषा के, वो तो hmm. को एप्लीकेंट उनकी मदर थी। अच्छा। तो लाखों का लोन माफ हो गया ना, थोड़ी ना दिया उन्होंने पैसा बैंक को। वही हम्म तो वो प्रेशर तो गया ना। हम्म आप समझो, मेरा क्या फायदा हुआ उसके लोन से? फिर बाद में वो लोग पूरे केस को चेंज करके बोलते मैंने मारा है, हम्म ताकि उनका इंश्योरेंस मिले उनको। हम्म तो ये आप सोचिए कितना मीननेस है। हम्म हम्म। गलत है ना? ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। एज अ पेरेंट्स आप सोचते कि तेरा मेरा नाम लिख के गई है क्या? नहीं ना। हम्म तो तू, why are you blaming me? Talk to me na, you are talking to me only all those days. Actually these people are very fake people. They promises a lot of thing to people, Vikas and this हम्म Kamya and all. They हम्म must have said कि अंकल अभी प्रत्युषा के बाद मैं हूँ, ये हूँ, वो ये हूँ, तो करके उन्होंने सोचा होगा नहीं कौन देखेगा हम लोगों को करके। यू अंडरस्टैंड, दे वर नॉट वर्किंग एट एनी वर्क, दे वर डिपेंडेंट ऑन प्रत्युषा ओनली। प्रत्युषा's पेरेंट्स तो उनको लगा होगा ये हस्बैंड। उनके। हम्म हाँ, मेरे पास आना चाहिए था, बात करना चाहिए था, लेकिन क्या बोलेंगे? हम्म हम्म, जो होना था होनी को कोई टाल नहीं सकता है, ना बिल्कुल हम ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। I want to ask you because you have seen Pratyusha very closely. You just spoke about हाँ, her that she has been ऑफ a कोर्स, very ऑफ good कोर्स। friend of yours, and then the dating and the relationship has happened. She has या, a certain circle, like she was very close. Initially, she was very close to Kamya. How has been that relationship like? उनके साथ कैसा रहा, fallout कैसे हुआ, क्यों हुआ, and post the fallout, how things were between both of them. I hardly used to talk to her about her past, but the only thing I knew is that Kamya was much elder to Pratyusha and by age, Hmm. and she was much mature to handle this. But when Hmm. she died, Hmm. her age was 24, 25. Right. Kamya and Pratyusha, and Pratyusha must be around 20, 21, Hmm. A gap. और यंग थी वो। Hmm. गैप, हाँ, बहुत गैप था उनका, और Hmm. मैच्योरिटी था। फिर वो सब था कि अपना वो जो पटेल साहब का, अभी किसी का Hmm. नाम वाम लेने में भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभी बोल देता हूँ में आके, Hmm. पर जो फैक्ट है वही बोलता हूँ मैं। बिल्कुल। Hmm. मैं कभी ये बोलता ही नहीं हूँ कि जो मतलब विदाउट एनी एविडेंस हो। Hmm. मतलब वो होता है। अब उसको भी समझ में आया होगा शायद, ऑल दीस पीपल आर यूजिंग मी, टेकिंग माय मनी, नॉट रिटर्निंग व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ देम। Right. दे आर नॉट लीड एक्टर्स लाइक मी। मैं बदनाम भी हो रही हूँ, ड्रिंकिंग पार्टीज वार्टीज ज्यादा हो रहा है, सो मे बी दिस मस्ट बी द रीजन। Hmm. अभी जैसे हमने बात करी पार्टीज ज्यादा होना, अल्कोहल ज्यादा बढ़ना, सो देर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज यू स्पीकिंग अबाउट हाउ काम्या हैज इन्फ्लुएंस्ड हर, स्पेशली प्रत्युषा इन अ स्पेसिफिक वे। डिड यू एवर कन्फ्रंट हर इस बात के लिए कि नहीं नहीं, मैं बात नहीं करता था मैडम, मैं ज्यादा कोई भी नहीं? कामिया से हम्म कामिया पंजाबी से, नहीं नहीं, मेरी एक बार मुलाकात हुई है। पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों, मतलब वो तो पता ही है क्यों पड़ी थी। नहीं करना चाहिए था ना वो। एक दिन आई मेट हर पर्सनली, हम्म दैट टू एंड 2 or 3 o'clock in the night. She was going to Delhi ओके। with Pratyusha, मतलब I was with Pratyusha. यू हाँ, नो life has played its part over the years for you. with me, chosen, चुन के मुझे चुना गया।
बेटा तू बहुत बहुत हीरो बनता है ना, ये कलयुग है, यहाँ पे हीरो बनना ना, तो तू था मैडम, मैं कुछ अगर उसको नहीं निकालता, वहां पे काटता, उसको बचाने की कोशिश करता, मैं वहां खड़ा रहता, तो मुझे कुछ भी नहीं होता ना मैडम। हम्म अब क्या करें, अब दिल ही ऐसा है मेरा। हम्म अब नहीं, अब कैसे हो सकता है। हम्म वो एक तो इतना हिम्मत जुटा के मैंने वो सारी चीजें की जिंदगी में, जो उसको मैं वो जो भी की थी, वो उसको मैं मतलब बचा सकूं। हम्म, बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड। इनफैक्ट मैं हाँ, मैं तो गाड़ी अपने गाड़ी में जब लेके जा रहा था, मैंने डिवाइडर्स क्रॉस किए, मैंने कैसे गाड़ी चलाया है कि मैं ही जानता हूँ। हम्म कितना जल्दी, एम्बुलेंस से भी ज्यादा मैंने मैंने ज्यादा तेज। और एम्बुलेंस तो डिवाइडर क्रॉस तोड़ता नहीं है, घूम के आता है, मैं डिवाइडर को ऊपर से, मेरे स्कॉर्पियो के ऊपर से उसको चढ़ा के लेके कि रोड क्रॉस करके। हम्म, जैसे बिल्कुल। आपने फिल्मों में देखा, अगर कोई लव स्टोरी होता है तो जो उसका क्लाइमैक्स होता है, वैसा ही था बिल्कुल। हम्म। तो जब ये आउट सब गेट कुछ से हो रहा हॉस्पिटल पे था, घुसा है। एंड इफ आई मे आस्क यू, जब ये सब कुछ हो रहा था तो दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? वाज दैट किसको बचाना कंप्लीटली है बस। ब्लैंक, या एक स्पेसिफिक थॉट? नहीं नहीं नहीं, उस समय तो उसको बचाना था। हम्म मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गया था हम्म कि मैं उसको मतलब बहुत बचाने की कोशिश की। हम्म हम्म गंदगी हमारे इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग हैं जो उनको अपने अपने चीजों से फायदा, शॉर्टकट चाहिए होता है, शॉर्टकट टू पॉपुलर, गेटिंग पॉपुलर। हु न्यू देम, दे वर ओनली कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस, हम्म दे वर नॉट विनर्स ऑफ बिग बॉस। हम्म ऐसे हैं बिग बॉस, 15 साल 20 साल से बिग बॉस आएगा तो क्या इनके बारे में बात किया जाएगा? अरे लोग विनर्स को भी भूल जाते हैं। हम्म तो इनको कौन इतना, ये इनको सब जाने प्रत्युषा के केस के बाद। हम्म इन लोगों ने मीडिया में बात किया, मैंने नहीं बात किया, मैं तो बात अभी कर रहा हूँ। हम्म तो फायदा मैं कैसे उठा रहा हूँ प्रत्युषा का नाम का? अरे मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में वो थी। मैं, मुझसे अगर सवाल पूछेंगे तो मैं ही जवाब दूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, कौन जवाब देगा? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिग बॉस बोलते रहते, जो बिग बॉस में आना है, बिग बॉस में आना है। अरे बिग बॉस के लिए भी अच्छा होगा ना मैं जाऊंगा तो, हम्म कि मेरे लिए ही खाली अच्छा होगा? हम्म हम्म मैंने क्या फेम नहीं देखा है अपने लाइफ में? देखा है ना, मुझे कौन सा बिल्कुल। फेम का मैं मरा पड़ा हूँ। यू नो, हाँ। इसी से रिलेटेड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग। बहुत सारे इंटरव्यूज आपके पढ़े, एंड देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर इंटरव्यू वेयर इन यू वेरी बोल्डली स्पोक अबाउट दैट you had Pratyusha's diary with you, her personal belongings and यस specifically यस। her diaries, and which will eventually reveal the हाँ। truth. I really wanted to know this thing because नहीं नहीं, वो अभी वो डायरी से भी ज्यादा, डायरी से भी ज्यादा हम लोग के एविडेंस मिल गए हैं। अभी हाई कोर्ट ने बोला था कि उसका पूरा फोन कॉल रिकॉर्ड और एसएमएस और मैसेजेस सारे हम्म हैंड ओवर किया जाए। बट मेरा सवाल तो आपसे उसमें ये तो था। पूरा, हम्म हाँ, if डायरी तो मैडम एक पन्ने में लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। उससे उस मतलब मेरे साथ अगर कुछ झगड़ा होता, कुछ होता, तो कभी भी डेट में तो लिखती थी ना कि आज हम्म मैंने ये किया, ये वो किया। तो वो डायरी में कहीं तो नहीं लिखा हुआ। मेरा कहने का मतलब यही था कि उसने मेरा बर्थडे प्लान किया हुआ था कि मेरे बर्थडे को 29 मई को मेरा बर्थडे आता है, और अप्रैल में उसने मेरा बर्थडे प्लान किया था। उस डायरी में वो पूरा बर्थडे प्लान लिखा हुआ था। हम्म बट और जिस उसने, हिसाब से मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा, व्हाट आई कुड गैदर फ्रॉम दैट इंटरव्यू वाज दैट इट हैज द पोटेंशियल टू रिवील द ट्रूथ, राइट? ऑफ कोर्स, एंड amid you being in such a public पार्ट scrutiny ऑफ ट्रूथ। during those times, जब आप हाँ, इतना ज्यादा पब्लिक स्क्रूटिनी में थे, I really want to ask you, why did you not आपने release देखा that था? diary publicly? What was the reason? नहीं, वो एविडेंस के तौर पे जाएगा ना मैडम, कोर्ट में जाएगा ना। मेरा हम्म काम थोड़ी ना पॉपुलैरिटी लेना इससे, हम्म प्रत्युषा से चीजों को लेके। हम्म, बिल्कुल। वो सब चीज एविडेंस है, वो सब जब कोर्ट में जाएगा जाएगा। अभी सब ये जो एविडेंस है, वो एविडेंस जो, ये सब चीजें होती है ना मैडम, ये डायरी हो गया, आपका वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, आपके एसएमएसेस हो गए, ये सब ना एविडेंस होता है। इसको अगर हम्म मैं मीडिया में दे दूंगा ना, तो हम्म ये फिर एविडेंस में काम नहीं आएगा। ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर तो। मीडिया हम्म में हम, मैं बात कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास ऐसा एविडेंस है, हम्म बट आई कैन नॉट गिव इट टू यू। हम्म ओके। उन लोगों ने, आप समझ रहे हो ना, सो इट इट विल बी अ डिफरेंट थिंग।
Hmm. I understand because you that is completely a police thing, and then it's bringing out on हम्म, a media platform. I get that it would maybe a problem हाँ for you to maybe नहीं, क्या फायदा वो देके, legally. लोग भी बोलेंगे क्यों दे रहा है कोर्ट का सामान इधर, क्यों दे रहा है। हाँ Hmm. True, true. We have been talking about Big Boss right now, and you said you have the wish to be on this season's Big Boss. मुझे एक बात बताइए, since एनी सीजन, मतलब हाँ, दिस सीजन, नेक्स्ट सीजन, व्हाटएवर सीजन, एक बार आना है। अपकमिंग हाँ, सीजन यही व्हाटएवर, सीजन आ रहा है अभी अपना कोई भी सीजन, तो हाँ, इट्स अ नाइस शो, आई वांट टू टेस्ट माय एबिलिटी हम्म ऑफ बीइंग देयर। okay. Tell me, do you think that since it is a reality show platform, and lot many people all across India watches it, do you think this could be a potential platform for you to speak out the truth and just जैसे अभी आपने कहा कि एक अलग image मुझे बतानी है because I am a actor. For you, you are an actor and an artist. You want to स्टार show मैम, that. स्टार, आई एम अ स्टार, नॉट एन Definitely, एक्टर। definitely. Agreed. Hmm. हाँ, थैंक यू। हाँ, So do you मुझे think वो, that मैं it's a platform for हम्म, you to just speak out the truth and establish yourself as a star once again? हाँ हाँ, today's days Big Boss is very good, people watches Big Boss, it's a good source of entertainment, who doesn't want good entertainment, बताओ आप। Right. सब, आप, यू कैन नॉट इग्नोर बिग बॉस ना, पहले पहले स्क्रूटिनी हुआ, अरे बिग बॉस Hmm. बेकार शो है, व्हाट आर दे डूइंग। Hmm. अभी हम, हमारा पूरा कंट्री ए सर्टिफिकेट हो गया है ऑनलाइन में, हमारा पूरा वो, तो इट इज गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी, फॉर पीपल टू नो, मोर एंड मोर पीपल टू नो अबाउट मी, Hmm. सो दैट दे शुड, वो सब मेरे को बहुत हेल्प करेगा मैडम। Hmm. Hmm. In terms of रियल है, everything, what you मैं have बहुत, been witnessing since last few years. हाँ सॉरी मैम। In terms of everything, चाहे वो प्रत्युषा की डेथ हो, चाहे उसके बाद के allegations हो, in terms of everything, Big Boss can be a platform for you to, just speak your mind and heart out. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स पैसे भी मिलेंगे अच्छे, पैसे भी देते हैं वो। जी, पैसे भी तो चाहिए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मेरा क्या तरीके से चाहिए होता है, हम्म मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए होता है। हम्म आई कैन नॉट टेक अ, नाम नहीं पसंद, उल्लू बोल दो, ये सब ऐप का, ये सब मैं एक्टिंग करने का मेरे को कोई शौक नहीं है, हम्म पैसे मिलेंगे तो भी नहीं। हम्म हम्म सो मुझे, हाँ, ये नाम ही पसंद नहीं मुझे। हम्म तो यस, ये बहुत, मतलब मेरे जैसा है शो बिग बॉस, उधर जाएंगे तो और मजा आएगा, अगर काम्या और विकास को भी डाल दो अंदर मेरे साथ तो। आपको लगता है एक बहुत तगड़ा फेस ऑफ हो सकता है? डू यू फील मैं सो? आउट हो जाऊंगा मैडम, व्हाई मैं डू यू आउट हो फील कि जाऊंगा, मैं आप मार दूंगा एलिमिनेट हो जाएंगे? मैं मैं हाँ, एलिमिनेट हो जाऊंगा ना मैं तुरंत। अच्छा, व्हाई डू यू फील सो? विकास, अरे वो हो जाता है ना उधर, मारा मारी करने से तो आउट हो ही जाता है, तो मैं विकास को छोड़ूंगा थोड़ी ना, हम्म कुछ भी ओके। बोलेगा तो उसको दे दूंगा। मैं झूठ क्यों बोला था पहले, बोल, सबके सामने बोल, सच्चाई मैं नहीं बोलूंगा, सच्चाई वो बोलेंगे, मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको सच। हम्म वो सच्चाई का प्रूफ देगा, मैं सवाल पूछा हूं उससे कि तू बता, ये व्हाट इज द डिफेमेशन केस, दिस इज की हम्म, व्हाट एवर यू हैव सेड, गिव इट इन द कोर्ट, बिल्कुल। गिव इट इन द कोर्ट। अब हाउ वाज विकास रिलेशनशिप विद प्रत्युषा? कैसा था उन लोगों के बीच की फ्रेंडशिप एंड एवरीथिंग? बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक्स दैट विकास वंस प्रपोज्ड हर, राइट, एंड शी प्रत्युषा टर्न्ड हर नॉट डाउन। इज प्रपोज, दैट ट्रू? डेटिंग, डेटिंग, वर दे डेटिंग? डेटिंग। वर दे डेटिंग? Like before you dating? प्रत्युषा ने तो मुझे नहीं बताया, Hmm. विकास बोला है तो फिर मुझे नहीं पता, हाउ हाउ हाउ, ही मे बी सेइंग राइट, आई डोंट नो, Hmm. हु नोज। Hmm. प्रत्युषा डिड नॉट टेल मी एनीथिंग अबाउट इट, Okay. विकास out of the blue came, Hmm. I was once dating Pratyusha. Moving ahead, I was just going through your Instagram and I saw that your love for fitness is on peak. You just like to keep yourself fit. चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो डाइट हो, उन सब चीजों से रिलेटेड, एंड that's great. But in the recent years, what one thing which we have been witnessing is that people who are into extreme gymming, who are into extreme cardio,
विटनेसेस कार्डियक अरेस्ट, चाहे वो हाँ। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ हो या अभी शेफाली जरीवाला के साथ हुआ हो. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, आई एम टेलिंग यू ना, व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, हम्म. जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो बहुत दिनों से पैक्ड होते हैं। हम्म. तो उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसमें ना बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा, जो हम लोग विजिबल आंख से देख नहीं सकते ना, वो सारी चीजें वो उसमें डेवलप हो जाती है। हम्म. तो लोगों को हिंदुस्तान के अंदर में सब फ्रूट, सब फल, सब कुछ मिलता है। हम्म. ये सब तो फॉरेन कंट्रीज के लिए है, जहाँ पे कोई इतना ठंड होता है वहां पे कि वहां पे कोई फ्रूट्स नहीं बनता है, वहां पे कोई मतलब जो प्रोटीन हम लोग का दाल होता है, ये सब चीजें वहां पे नहीं होती है। हम्म. रशिया में शायद ही कहीं एक छोटे से पार्ट में होता है। हम्म. तो वो लोग ये प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं। हम्म. तो जस्ट बिकॉज इंडिया में तो सब कुछ है, तो हम्म. आप दाल पी लो, खाना खा लो, ये सारी चीजें करो ना। ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम अब्रॉड में बहुत है मैडम, हम्म. बिकॉज ऑफ देयर फ्राइड फ्रूट एंड देयर डाइट का, जो आप अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो ये पाउडर्स हैं हम्म. जिसके अंदर आप देखोगे ना तो आपको 100%, आप ही बताओ ना, एक दवा दवा डाल के उसको प्रिजर्व करते हैं उसको। इंडिया में तो जब सब मिलता है 5,000 6,000 में एक एक प्रोटीन का डब्बा आता है, तो आप समझ नहीं सकते हो इसमें कितना पैसा है, हम्म. और जबकि हमें जरूरत ही नहीं है इस चीज की। अभी हम आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं विच आर इन द पाइपलाइन अपकमिंग, तो हमें थोड़ा बहुत कुछ उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए. व्हाट आर यू, यू नो, अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस, व्हाट आर यू लुकिंग अहेड टू? But in a film which somebody has approached me to हम्म. do that film, हम्म. so I'm just waiting for the court thing to settle down. हम्म. So then we will announce the film. अच्छा. ओके. We'll announce that film. It is a I can just hint you, it is a very hit film remake. ओके. फ्रॉम साउथ और समथिंग? No, 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 no. Hindi film, हम्म. very hit film, हम्म. old time film, 1973, हम्म. very hit murder mystery. ओके. उसका रीमेक है। रीमेक. रीमेक. उत्तरांचल में शूटिंग है, मर्डर मिस्ट्री है। उस टाइम बहुत हिट हुई थी वो फिल्म। हम्म. जैसे डॉन है ना, डॉन डॉन बनी हम्म. हम्म. उसी दौरान बनी, हम्म. 70s के दौरान। हम्म. तो ये भी वैसा ही है, 1973 की मर्डर मिस्ट्री है। ओके. उस ओके. समय के बड़े बड़े कलाकार उस फिल्म में अभिनय किए थे। I'm sure your fans must be really eagerly waiting to see you back on the big screens. So kudos to you and all the very best to you for that. Coming to my very last question to you. अगर मैं आपसे एक बात पूछूं that you know there is one thing which you want to talk about Pratyusha which you have never spoke to anybody, not even on media, not even to anybody, what would it be? And completely something which you know which you think that you really want to speak about. अबाउट प्रत्यूषा? Yeah. And related to her demise. One thing you never रिलेटेड टू हर spoke डिमाइस? to and related to Pratyusha and her demise, and something which you never spoke to anybody, not on even media, and you think that it should come out. कम आउट? कुछ तो होगा। her Salma. mom used to believe, yes, yes, the thing is, Hmm. um, being a Bengali, they were also into वो पूजा पाठ, उल्टा पूजा पाठ। अच्छा. What I feel, हाँ, तो एक once she stopped me taking a laddu from her mother, Okay. कि don't take that laddu because this may be a Vashikaran laddu, because when they had this fight with the loan and all, Hmm. तो वो लड्डू मत लेना। Hmm. Hmm. So did you So ever that was, dig I into was very, that कि then क्यों I ऐसा क्यों? then I said कि I had one laddu once। Hmm. तो बोले कि now you don't have। मैं बोला यार पहले बताना चाहिए, तो बोली अभी लड़ाई हुआ ना इसीलिए अभी बताया। Hmm. So yeah, this is the thing। तो
देखो उसके मतलब आई इन इन दीज आर वेरी वेरी रिलेटेबल थिंग्स इन बंगाल, बंगालीज के बीच में ये सब बहुत होता है। हम्म। तो आपने कभी डिग तो किया मुझे ऐसा पूछने के लिए कि ऐसा क्यों, क्यों आपने मुझे मना किया लड्डू खाने से? नहीं, प्रत्युषा ने मना किया था मुझे। आपने कभी उनसे पूछा कि व्हाई डिड यू स्टॉप मी फ्रॉम ईटिंग दैट लड्डू? दैट कैन बी अ वशीकरण का लड्डू, शी सेड ना। अच्छा, शी सेड इट क्लियरली। हाँ, बोले सब तुमसे लिखवा लेगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। हम्म। तभी तो उसके इतने लोन्स थे। वो हम्म। बोली मुझे पता ही नहीं कब साइन साइन लेते थे मुझसे, नहीं तो उसको इतनी लोन की क्या जरूरत थी? अपने आप को, एक लड़की को रखने के लिए इतने लोन की क्या जरूरत थी? आदमी घर के लिए लोन लेता है, आदमी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लोन लेता है, तो वो इतने इतने लोन लेके करे क्या वो? बिल्कुल। गाड़ी का भी पैसा नहीं देते थे, ईएमआई। तो ये सारी चीजें, मतलब एक चीज जो मैंने कभी बोला नहीं, मैं सोच के बोला अभी। मैंने हम्म। कभी नहीं बोला मुझे। अब क्या ही, ये सब चीज का कोई प्रूफ तो होता नहीं है। अभी आपको मैंने क्या बोला था, बिना एविडेंस का मैं कोई बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल। नहीं, खैर, ये उसके जो फादर आप बोल गाली रहे देते हैं थे, कि मैं पहले बोला। हम्म। अभी एविडेंस आया, गाली देते थे। हम्म। चिट्ठी है पूरा। हम्म। तो पूरा है ना, पूरा पेन ड्राइव में पता। तो हम्म। वही बात है, ये सब जो काला जादू और ये सारी चीजें, ब्लैक मैजिक एंड ऑल दिस वशीकरण थिंग व्हिच has happened, so I believe in all this thing happens. I हम्म। have heard lot of stories from different people because my mom is also Bengali. हम्म। So I my father is a Bihari from Rajput, हम्म। from Ranchi, but my mother is a Bengali ना। हम्म। उनका भी तो सर्कल है ही ना, तो मैंने ऐसा बहुत सुना है भाई। So, with that, we come to an end of the थैंक यू। session. It was such a lovely conversation with you, Rahul. Thank you so much for taking out time, and all the very सेम best ईयर, for all सेम the ईयर। upcoming projects.